with the PYQ analysis of this video. So question number 73, already up to 72 I have already completed, and for each year I have made a playlist for 11, 12, 13 and 14. So you don't need to search a lot, you directly go in my playlists, they are public. You just watch all the playlists. Within maybe 2 3 4 hours you will finish all the playlist, and you will definitely get the required insights, because the students who are following this initiative sincerely always ask me, leave anything else apart, but please finish this PYQ analysis. So see the importance of this initiative. Means the students which are following this program sincerely, they always put a comment. Whatever video I make, they always put a comment, sir please complete PYQ analysis, because they know the importance of these PYQ analysis videos and the PYQ analyze notes. Therefore I am also sincere about this key. I will finish as early as possible. So let us start. So question number 73, consider the following statements, right? And three statements are there. See the beauty of the statements, and you will definitely get good analysis in this question. First option is maize can be used for production of starch. Can be used. There is no firm argument कि करना ही चाहिए, मतलब कि there is a possibility maize can be used, right? So these statements become correct. Second statements, because therefore I have used the black pen. See, whatever PDFs I am sharing in the free notes channel, these PDFs, underlined PDFs, are also very important. Even if you are watching my videos, still you keep PDFs with you, because the color of the pen which I am using for underlining the statements and dark underlines and red underlines, whoever people are following me from beginning, they know already ki how these no different color pens, why these cross marks, why these correct marks, etc. But whoever watching these sessions first time, they should know कि this is the beauty कि black color is a correct statements, red color is a wrong statements. You definitely get the PDFs in the free notes channel. So go ahead and the whatever PYQ analysis I am discussing, you will get in my PYQ analyze notes. So see second statement, oil extracted from maize can be a feedstock for biodiesel. Here also is a possibility. Maize means oil from maize can be feedstock, मतलब कि there is no firm argument कि ये होना ही चाहिए. तो this statement also correct. And third statement, alcoholic beverages can be produced by using maize. Means all the three options are applications of maize, and there is a possibility only. So when there is a application base, means suppose statements are saying about application of something, that statements are 100% correct. 100% correct means you have to read the statement, and if that statement is application of something, and there is only possibility, not firm argument. And one important thing, if there is no extreme statement or any particular fact in that statement, go ahead, that statements are correct. Means after analyzing all these question papers, 4 years question paper, you already know how the beauty of this analysis works. सेकंड क्वेश्चन नंबर 74, इसलिए द आंसर ऑफ 73rd क्वेश्चन का आंसर हो गया डी ऑप्शन 1, 2 and 3. Question number 74, among the following organisms which one does not belong to the class of other three? See one important thing, means UPSC already declared ki mains result will come in the next week. So don't worry guys, I will keep guiding you, even I am preparing for my interview also simultaneously, but I will not dilute the guidance. Means whatever I am planned, whatever PYQ analysis, whatever CSAT sessions I have planned, whatever notes I am going to share, whatever already paid notes I have to provide, I will not compromise in those things. So don't worry about that, I will be firm about our plan. So keep following. Whoever are sincerely following, they will definitely get something better and something different than other platforms, right? So next question, among the following organisms which one does not belong to the class of other three? See in this question there is no logic, therefore this either you know it or you don't know it. But in my pre notes there is a general science note, in that this is covered. So this is from NCERT directly. But in addition, you should definitely know, definitely search about what is the crab, what is the mite, what is the scorpion, what is the spider, their different properties, speciality, and these points are covered in my paid notes. So let's move to the next question, question number 75.
The power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in. The power to increase the number of judges in the Supreme Court. See, अभी अभी यहाँ पे देखो, मतलब कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ये लक्ष्मीकांत से या एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो जो 4 ऑप्शंस दिए ना, ऐसे ऐसे ऑप्शन में अगर आपको पता है तो डेफिनेटली गुड, लेकिन 4 ऑप्शंस में ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने की, नंबर बढ़ाने की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मतलब कि जजेस का नंबर बढ़ाना है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उतना तो आपको पता है, क्योंकि दिस विल रिक्वायर अमेंडमेंट ऑफ द constitution, right? So that cannot be done by one person. So A is wrong because president is just one person, one person. Chief Justice of India is also one person. So A and C are eliminated, right? Because those are one. Yes, increasing the number of judges is a big power, so it should not be vested in one person or maybe in executive, because if president of India is vested with that power, president is following the advice of prime minister and means cabinet, right? So they will misuse that power. So therefore A is wrong and C is also wrong, because chief justice also can be, मतलब कि means one person, एक person में वो power वेस्ट मतलब कि नहीं दे दी जा सकती। तो remaining options B and D, B is the parliament and D is the law commission. So among these two, who is more powerful? Parliament. So you have to think in that way कि among the given options what is more powerful, because question is asking about increasing the number, which is a big power, and therefore among the options the powerful organization must do that. And important is you everybody know the answer of such type of questions. So next question number 76. Consider the following town of India. See, consider the following town of India: Bhadrachalam, Chanderi, Kanchipuram and Karnal. Which of the above are famous for the production of traditional saris or fabrics? See, either you know it or you don't know it type question. There is no logic, there is nothing. You have to remember these cities, so there is no logic. But once they are come in the prelims question paper, you have to search about Bhadrachalam. What is the speciality of Bhadrachalam? What is the speciality of Chanderi? What is Kanchipuram speciality? What is Karnal speciality? And write in your notes, which I have done in my paid notes, right? So if some question come in future years about Bhadrachalam, about Chanderi, about anything, so you definitely make the correct. तो इसलिए इसका आंसर है 2 and 3 only. There is no logic, but this is the thing, right? Now this is the next question. Consider the following pairs. 3 national highways are given and cities connected are given. See, now this question how to solve. देखो NH4, NH6 and NH15. There are particular figures. 4, 6 and 15 are figures. Who can remember? There are 40, मतलब I don't know number of national highways, how many number of national highways, and who can remember this thing कि this highway is from this to this city, this highway is from this to this city. Means this is manually impossible to remember. मतलब कि यू कैन रिमेंबर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट 3 जितने भी है 350 400 जितने भी आर्टिकल है, उसमें से भी सिलेक्टिव आर्टिकल्स यू कैन रिमेंबर. यू कैन नॉट रिमेंबर एवरी आर्टिकल, राइट? So number of highways, how you can remember? So see the beauty. If something cannot be manually remembered, that is none option. Always remember in UPSC. Means if there is something which cannot be remembered. एक क्वेश्चन था कि 3 नेशनल पार्क दिए थे, 3 नेशनल पार्क्स आर गिवन एंड दे हैव आस्क्ड कि विच रिवर, कौन सी रिवर उसमें से बहती है, इस नेशनल पार्क से कौन सी, इस नेशनल पार्क से कौन सी. अभी देखो ऑलमोस्ट जितने नेशनल पार्क है उसमें कोई ना कोई नदी बहती होंगी, कोई ना कोई नेशनल पार्क से कोई ना कोई नदी बहेंगी. तो यू कैन नॉट रिमेंबर दिस थिंग मैन्युअली. सो यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक कि जो चीज़ मैन्युअली रिमेंबर करना इम्पॉसिबल है, जो बहुत बड़ा डेटा है, दैट इज ऑल द ऑप्शंस आर डेफिनेटली रॉन्ग एंड नन ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए. देखो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस करेक्ट नहीं होते हैं. जहाँ पे यूपीएससी का एक मुझे ट्रिक पता चला है कि जहाँ जो चीज़ आप रिमेंबर नहीं कर सकते, whichever you cannot remember manually, they definitely give it wrong. That you must remember this logic. So इसी तरीके से मैंने मेरे पेड नोट्स में, मैं कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट्स क्यों लिखे. द रीज़न इज
बिकॉज ऑफ दिस कि आपको पता होना चाहिए कि रॉन्ग स्टेटमेंट्स कैसे वाले स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं, कैसे वाले स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं, ताकि ये जो मैं एनालिसिस करता हूँ ना वो आपको मेरे नोट्स में भी कनेक्ट मिलेगा कि हाँ यार इन्होंने रॉन्ग वाले स्टेटमेंट्स भी लिखे। क्या होता है ना, मतलब कि लोग जब पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ करेक्ट वाला स्टेटमेंट देखेंगे और चले जाएंगे। एक्चुअली यूपीएससी रॉन्ग वाला पकड़ के क्वेश्चन पूछेगी एंड यू आर डूम, बिकॉज आपने किया ही नहीं रॉन्ग वाले स्टेटमेंट्स को अच्छे से एनालाइज। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सो इसका आंसर है नन, ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। एंड ये नेशनल हाईवेज का नंबर तो अभी रिसेंटली तो सारा बदल गया है, तो बस बट ऐसे क्वेश्चन के लिए आपसे आप ऐसे मत करना कि सारे नेशनल हाईवे ले लो, कोई बताएगा आपको नेशनल हाईवेज और एक घंटे का वीडियो बना दिया, हाँ ये नेशनल हाईवे यहाँ से, हाँ यू कैन नॉट रिमेंबर, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सच टाइप ऑफ वीडियोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। See, there are three international agreements given. Which are they? And what is the question? Which of the above have bearing on biodiversity? See, biodiversity से बायोडाइवर्सिटी पे कौन से अफेक्ट करते हैं। तो पहले ऑप्शन में मैंने प्लांट को अंडरलाइन किया है डार्क, राइट। तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फूड एंड एग्रीकल्चर, मतलब कि प्लांट है तो बायोडाइवर्सिटी आ गई, तो 1 इज करेक्ट। द यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, देखो डेजर्ट होना मतलब क्या होना, पेड़ वगैरह मर जाएंगे, मतलब कि पेड़ मरेंगे, जल जाएंगे, डेजर्ट तैयार होगा, तो इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ देयर, वहाँ के प्राणी मरेंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, तो इसलिए 1 and 2 बोथ आर कनेक्टेड टू बायोडाइवर्सिटी। तो बी एंड सी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि 1 and 2 साइमल्टेनियसली नहीं है, तो ए एंड डी दोनों में से आंसर है। तीसरा कौन सा है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। नाउ सी, बायोडाइवर्सिटी और हेरिटेज मतलब कि कुछ कुछ आपको इतना आपको पता होगा कि कुछ कुछ नेशनल पार्क्स आर कुछ कुछ नेशनल पार्क या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जैसे कि खांगचनजुंगा है सिक्किम में, खांगचनजुंगा जो कि नेशनल पार्क है, और बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, मतलब कि वो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, मतलब कि वो वर्ल्ड मिक्स हेरिटेज साइट है, मिक्स हेरिटेज साइट है इंडिया का, राइट। मतलब कि उतना भी आपको कहीं ना कहीं, तो इसलिए मेरे नोट्स, मैं जो बोलता हूँ ना मेरे पेड वाले नोट्स आपके कहाँ काम आएंगे। इवन यू डोंट गेट द डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें से जो भी वर्ड ना वर्ड भी आप पढ़ोगे ना, तो इट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड कनेक्ट द ऑप्शन। सी, इफ यू इतना भी पता होगा ना आपको कि खांगचनजुंगा नेशनल पार्क इज अ बायोडाइवर्सिटी रिजर्व एंड इट इज अ मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो इसे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट कर सकते हैं आप इस तरीके से आपके नोट्स, इसलिए इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ आवर। सी, अब यहाँ पे एक बड़ा सा अच्छा लॉजिक मैं बताने वाला, ऑलरेडी भी बताया है लेकिन पहली बार जो देख रहे हैं उनको बताता हूँ। देखो, इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड यूनेस्को। सी, जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा ना ऑप्शन में, आप सारे सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ के देखो, या मैं एनालिसिस तो कर ही लूंगा, सारे क्वेश्चन पेपर में देखो, जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना किसी ऑप्शन में, वो ऑप्शन रॉन्ग है। तो मतलब कि ब्यूटी देखो, आपको याद नहीं करना है वो चीज़ें, क्योंकि बिकॉज मैंने अभी बोला कि जो चीज़ें आप मैन्युअली याद नहीं कर सकते ना, वो चीज़ें रॉन्ग देती है यूपीएससी जानबूझ के। यहाँ पे कोई किसी और का इनिशिएटिव होगा, जानबूझ के किसी और इंस्टीट्यूट का नाम देता है एंड इट इज़ रॉन्ग, देयरफॉर 1 इज रॉन्ग। तो ए एंड डी में रॉन्ग है, डी मेरे से कट हुआ है शायद, ए एंड 1 है, डी ऑप्शन वॉज 1, 2 एंड 3, तो ए एंड डी में 1 है, इलिमिनेट हो गया, बी एंड सी बचा। अभी बी एंड सी देखो कैसे, बी एंड सी दोनों में 2 है तो 2 को पढ़ते हैं, राइट। पहला समझ में आया, जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का किसी काम है तो अर्थ आवर, मतलब कि किसी का इनिशिएटिव बोला ना, इट इज इनिशिएटिव ऑफ दिस एंड दिस, या इट इज इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक, इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को, ऐसा वर्ड आया ना। ये तो इस साल भी एक क्वेश्चन आया था 21 फरवरी दिस एंड वहाँ पे यूनिसेफ था। एक्चुअली वहाँ पे यूनेस्को होना चाहिए था, 2021 का बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली वहाँ पे यूनेस्को होना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी जानबूझ के यूनिसेफ दिया। तो जिन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है उन्होंने करेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे ट्रिक पता था, मुझे पता नहीं था यूनिसेफ है यूनेस्को है, लेकिन मुझे ये ट्रिक पता था, बार बार मैंने एनालिसिस किया था कि ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, एंड आई मेड कंसिडर दैट स्टेटमेंट रॉन्ग। जब 21 का मैं एनालिसिस करूंगा ना तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैंने 19, 20 और 21 में मैंने कैसे
मेरे टेक्निक्स अप्लाई किए तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। सो इसलिए 1 इज़ रॉन्ग। सेकंड वाला क्या है, इट इज़ मोमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 आवर ऑन सर्टन डे एवरी ईयर। तो देखो ये एक मोमेंट के मतलब कि अर्थ आवर की डेफिनेशन बोलिए बस। देखो अर्थ हावर एंड ऑप्शन में भी 1 आवर आया है, मतलब कि 1 आवर की बात हुई है कुछ ना कुछ, राइट। और क्या है, इट इज़ मोमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 आवर फॉर सर्टन डे एवरी ईयर। होगा मतलब कि 1 आवर वर्ड आया है, अर्थ आवर 1 आवर थोड़ा सा कनेक्ट होता है स्टेटमेंट, राइट। हमें पता भी नहीं है तो इसलिए सेकंड इज करेक्ट। और वैसे भी बी एंड सी दोनों में सेकंड है तो राइट कनेक्ट हुआ। लास्ट वाला ऑप्शन देखो, इट इज़ अ मोमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लानट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जो भी स्टेटमेंट बायोडाइवर्सिटी को अच्छा बढ़ावा देती है या कंजर्वेशन की बात हो रही है जिस भी स्टेटमेंट में, या ग्लोबल वार्मिंग कम करने की बात हो रही है, या मतलब कि ग्रीन ग्रीन इनिशिएटिव कुछ है ना, दैट इज स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट बिकॉज वर्ल्ड इज बिहाइंड द कंजर्वेशन नाउ, मतलब कि हमें वही करना है, राइट। तो ऐसे बारीक बारीक ट्रिक आपको याद रखनी कि हाँ ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात कर रहा है, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। एंड इसलिए 2 एंड 3 ओनली इज द आंसर। तो इस तरीके से काम आते हैं हमारे नोट्स और हमारे PYQ एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन। सी, मैंने ऑलरेडी बोला है कि 21 में एक क्वेश्चन आया था, मैंने एक्सप्लेन किया है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और उसमें पूछा था उन्होंने, एक ऑप्शन दिया था डायटम्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर देखो, डायटम्स पहले है मतलब वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो इस क्वेश्चन में तो लॉजिक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन का एनालिसिस की वजह से मैं 21 का एक क्वेश्चन कर पाया डायटम्स वाला। डायटम्स इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, और इसलिए आई कुड मेक दैट क्वेश्चन करेक्ट। तो यही है मतलब कि डायटम्स, तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को एनालिसिस करके कि फूड चेन के बारे में कि डायटम्स क्या है, क्रस्टेशियंस क्या है, हेरिंग्स क्या है, पूरा लिख लिया। इसमें लॉजिक नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आया तो ये वाला क्वेश्चन मुझे वहाँ हेल्प किया, राइट। सो इस तरीके से हेल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, 82, 83, 84, मतलब कि और 5 क्वेश्चन करेंगे। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, राइट। हमको पता है मतलब कि जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती है उनको पता होता है कि 1911 में वापस लिया था। लेकिन देखो यह इस क्वेश्चन की भी ब्यूटी देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, मतलब कि कब तक, क्वेश्चन पूछा है कि कब तक। तो देखो बी में डायरेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन ही दिया है, किंग जॉर्ज 5 अब्रोगेटेड कर्जन एक्ट। क्वेश्चन में कर्जन पूछा था, राइट। बी ऑप्शन देखो कैसे लिखा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन किया था, और बी में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, किंग जॉर्ज 5 अब्रोगेटेड कर्जन एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि डेट वगैरह आते हैं तो रॉन्ग होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर डेट आता है तो रॉन्ग होता है। यहाँ पे देखो ये हिस्ट्री का डेट है, हिस्ट्री में डेट्स जनरली कभी कभी करेक्ट देते हैं, तो वो एक आपको हिस्ट्री के बारे में वो अलग है, करंट के बारे में डेट वगैरह रॉन्ग हो सकता है। तो बी में देखो कर्जन का नाम आया है, क्वेश्चन में भी कर्जन का नाम है, ऑप्शन में भी कर्जन का नाम है, बाकी तीनों ऑप्शन में कर्जन का नाम नहीं है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बी इज द आंसर। तो ऐसे लॉजिक लगाना है कुछ ना कुछ अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। और सी क्या दिया है, गांधी जी लॉन्च हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो एक तो पता है, इतना तो हमें पता है कि गांधी जी 1915 में आए थे इंडिया में, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डी क्या है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 व्हेन ईस्ट बंगाल बिकम वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें इतना तो पता है कि हाँ यार 1947 इतने दिन तो नहीं रहा होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि कर्जन का नाम आया, इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और पहले वाला स्टेटमेंट आप पढ़ लो, वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन एनालाइजिंग द मीन्स, फिर भी पढ़ता हूँ। द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन इंडियन ट्रूप्स वेर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। हाँ देखो यहाँ पे भी देखो मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार तक उन्होंने बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वार तक चला था पार्टीशन, लेकिन बी में क्या दिया है, कर्जन का नाम आया है, इसलिए बी इज द मोस्ट मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा सा स्टैटिक का है, स्टैटिक का भी पार्ट है, लेकिन कर्जन का नाम है, इसलिए बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। तो 1929 के सेशन के बारे में हमें सर्च करके रखना है, मेरे नोट्स में मिलेगा आपको 1929 सेशन किसके लिए था। 3-4 बार उसके ऊपर क्वेश्चन आए, उसका प्रेसिडेंट कौन था एक बार आया होगा, उसका एक्चुअल एम क्या था एक बार आया होगा,
वगैरह, ऐसे लाहौर सेशन, ये लाहौर सेशन था। तो ऐसे मतलब कि ये कौन सा, ऐसे इम्पोर्टेंट आता है। तो मतलब कि इसमें कुछ ये नहीं है, लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी देखो बी ऑप्शन क्या है, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस। सिग्निफिकेंस पूछा है, राइट। गोल, गोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूर्ण स्वराज और गोल है। पहला वाला ऑप्शन का क्या है, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट और पूर्ण स्वराज, इसमें थोड़ा फर्क है। तो इतना तो हमें पता होता है, 1929 के बारे में पढ़ा होता है कि हाँ यार पूर्ण स्वराज था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, क्योंकि इस सेशन के प्रेसिडेंट नेहरू थे, वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन इसमें हर एक क्वेश्चन में लॉजिक तो नहीं लगेगा, आपको बस पता होना चाहिए। लेकिन इसको हमें फैक्ट की तरह याद रखना है। हाँ, 1929 सेशन कहा हुआ था, कौन प्रेसिडेंट था, उसका गोल क्या था, एवरीथिंग। सो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विथ रेफरेंस टू फेमस सत्रिया डांस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब कि फेमस सत्रिया जो डांस था ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, राइट, स्टेटमेंट्स। तो रॉन्ग वाला स्टेटमेंट पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल रागाज एंड तालाज ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। सी, यहाँ पे पर्सन्स के नाम आए, ये पर्टिकुलर फैक्ट हो गए, मैंने ऑलरेडी बोला है। कौन याद रख सकता है तुलसीदास ने क्या लिखा था, कबीर ने क्या लिखा था, मीराबाई ने क्या लिखा था, संत कबीर ने क्या लिखा था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट 3 लोगों के नाम दिए हैं की स्टेटमेंट में, और अलग से मतलब कि वो याद रखना इम्पॉसिबल है मैन्युअली। तो इसलिए सी एंड डी मैं इलिमिनेट कर देता हूँ इमीडिएटली। बचा कौन सा, वन एंड टू ओनली, और वन तो दोनों में है, इसलिए वन को आप खुद ही पढ़ना। उसमें क्या दिया है, क्षत्रिय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो उसमें कुछ पर्सन का नाम नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, तो ये तो मतलब कि नाम नहीं है, ये तो चीजें है, राइट। म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये किसको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए वन इज करेक्ट। एंड सेकंड, इट इज सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ असम। अभी देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आसाम का नाम आया, लेकिन इतना हमें पता है कि सत्रिया डांस किस स्टेट का है, इतना हमें पता होता है। मैं हमारे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स पढ़ के या कुछ ना कुछ पीवाई के एनालिसिस करके जो नोट्स बनाए उसमें से आप पढ़ के जाओगे, और किसी एक डांस के बारे में अगर उस स्टेट का नाम आया ना पर्टिकुलर, तो उतना तो आपको फैक्ट याद रहेगा, राइट। तो इसलिए टू इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज अ सेंचुरीज ओल्ड, ऐसे बोला है क्या, इट इज 100 सेंचुरीज ओल्ड, इट इज 5 सेंचुरीज ओल्ड, इट इज 2 सेंचुरीज ओल्ड, या इट इज 10 सेंचुरीज ओल्ड। उन्होंने जस्ट बोला है कि इट इज सेंचुरीज ओल्ड, मतलब कि शतकों पुराना। ऐसे नहीं बोला कि इतने शतकों पुराना है, मतलब कि पर्टिकुलरिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट इज इलिमिनेटेड, मतलब कि उसमें पर्टिकुलर नहीं लिखा कि 1 सेंचुरी से या 2 सेंचुरी से, ऐसे जनरल बात कर ली कि सेंचुरीज ओल्ड। इसलिए मैंने उस वर्ड को डार्क ब्लैक से अंडरलाइन किया। मतलब कि मैं एवरी क्वेश्चन में डार्क अंडरलाइन एक्सप्लेन नहीं करूंगा गाइज। जो जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, और डार्क अंडरलाइन का कुछ ब्यूटीफुल मीनिंग है, वो मेरे नोट्स से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, वो आपको याद रखना है। ओके, सो इसलिए इसका आंसर हो गया 1 and 2 ओनली, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, Chaitra 1 is the national calendar based on the Saka era, corresponds to which of the following dates of the Gregorian calendar in the normal year of 365। तो ये देखो, इसमें एक ही थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ मैं, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन ए एंड सी दोनों में मार्च महीने की बात हुई है, बी में मई महीने की, और डी में अप्रैल महीने की। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट हो ना, ऐसे ऑप्शंस हो ना कि वो दो ऑप्शंस में कुछ सिमिलैरिटी है, तो वो दोनों में से एक आंसर है। तो इसमें तो मैं डायरेक्ट ए वाले तक नहीं लेके जा पाऊंगा आपको, लेकिन मार्च है ना दोनों में, तो ए एंड सी ये दोनों में से एक आंसर है, उतना तो आपको पता ही होना चाहिए, राइट। तो बाद में आगे का ए है या सी है, उसमें आप थोड़ा और लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे कि 31 मार्च ऐसे करेक्ट वाला डेट आया, 31 मार्च क्या है, फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट होता है। तो ये सका ईयर कैलेंडर ईयर का 31 मार्च से तो कुछ कनेक्शन नहीं होगा, कुछ ऐसा ही मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स डेट होना चाहिए, मतलब कि एक वियर्ड टाइप का लॉजिक है। लेकिन दोनों मार्च में तो आप सिलेक्ट कर पाए, क्योंकि बी एंड डी तो हमने एलिमिनेट किया कि वो अलग ही महीने हैं, लेकिन ए एंड सी आर मार्च ओनली, राइट। और सी क्या है, 31 मार्च, करेक्ट सा डेट है, मार्च महीना खत्म होते ही वो कैलेंडर भी वो नहीं है। 22 मार्च कैसे बीच में ही आ गया डेट, तो वो लॉजिक आप लगा सकते हैं, हाँ ये बीच वाला डेट थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, ना कि 31 मार्च जो कंप्लीट महीने के एंड वाली डेट है। तो ऐसे
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी आपको ऑन द स्पॉट करनी चाहिए, करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, राइट, एंड इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क, राइट। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए, 84 का आंसर हो गया ए, 22 मार्च। लास्ट ऑप्शन 80, लास्ट क्वेश्चन 85। तो इसमें भी देखो, इसमें ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं पढ़ के पूरा एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लगाऊंगा, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बस एक लॉजिक इसमें अप्लाई होगा मेरा, जो मैंने बोला था कि ऑब्लिक वाला स्टेटमेंट है ना, थर्ड वाले में देखो, अर्जुनाज पीनस ऑब्लिक डिसेंट ऑफ गंगा, तो ऑब्लिक वाला स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट होता है, उतना मैंने बता सकता हूँ। बाकी दो स्टेटमेंट में आपको खुद से पढ़ना है, याद रखना है, इसमें लॉजिक नहीं है। ये आर्ट एंड कल्चर है, लेकिन मेरे आर्ट एंड कल्चर वाले जो नोट्स है ना, उनमें आपको सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे फ्यूचर में या जो भी आए हैं डेफिनेटली उसमें मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर के नोट्स ऐसे है जो आपको मेंस को भी सफिशिएंट है, मैंने सारे सोर्सेस मिला के मेंस ओरिएंटेड, प्रीलिम ओरिएंटेड आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बनाए। आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही वास्ट टाइप सिलेबस है, क्वेश्चन आते 4-5 आते हैं प्रीलिम को, और मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने उसके अलग से नोट्स ही बनाए, तो वो नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए। सो दिस मच इज इन दिस सेशन, सो आई कुड फिनिश ऑलमोस्ट 10। थोड़ा सा फास्ट फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ो, समझ में नहीं आया सुनो, थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप रिपीट थोड़ा सा करके या बैक लेके देख सकते हो, बट डोंट इग्नोर दिस सेशंस, डोंट इग्नोर द वीडियो नोट्स, जिन्होंने भी लिए हैं उन्होंने सिंसियरली फॉलो करो, आपको डेफिनेटली एज मिलेगा, दैट इज़ माय श्योर गारंटी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 2022 के प्रीलिम में आपको बहुत फायदा होगा। दैट मच गाइज फॉर दिस सेशन, नाउ हैव मीन्स एक 9:30 का सेशन भी हम करने वाले हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन के 3 क्वेश्चन बस मैं लूँगा, 3 पैसेजेस और 3 क्वेश्चंस। जिनको सीसैट का डर लगता है या जिनको सीसैट के लिए फॉलो करना है, वो लोग वो वाला सेशन देखें, जिनको सीसैट ठीक लगता है, खुद खुद के ऊपर भरोसा है, उन्होंने वो सेशन नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं है, यू कैन डेफिनेटली स्किप दैट सेशन। सो जिनके लिए सीसैट के लिए जरूरी है वो लोग वो वाला सेशन देखें। सो इस वीडियो में इतना ही। जिनको पेड नोट्स लेने हैं मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कैसे कैसे आपको अप्रोच होना है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।